Hey all, Ankit Kusho this side from Stay Fleet team and welcome back to my channel. So a summary video of this Nifty expiry again. So here I'm again going to tell you what profit and loss I made and how I managed my trade and everything I'm going to tell you. But before that, let me tell you one thing. Yesterday was mid cap expiry, okay, and I don't trade mid cap at all. Okay, mid cap and Sensex I don't trade at all. Sometime only I just for the experience I try to take some position in Sensex, but mid cap I don't trade at all. So here yesterday what happened, I tried to trade it, okay, and the worst part is I traded with my complete quantity, okay, and what happened, I booked the biggest loss yesterday, okay, and this update I have given in the community post. Also I have given live update even on my Telegram channel yesterday. So why it happened, you can see it yourself, okay. So straddle opened with like 32 points yesterday, and then what I did, I took a strangle of 100 points away and it was giving fantastic decay till here. But after then, look at this fall. It's like 107 points of fall, which is three and a half times of what a straddle was holding the premium. And after that, this was just the beginning. After that, a straight rally of 162 points, which is like 5 times more than what straddle was showing. And even after that, it's not the end. उसके बाद फिर एक fall आया almost 45 points का. And then after this fall it continued going up and again a 100 point of move. So it moved almost 10 plus times of what straddle was showing all together, including the down move, including the up move. All together it almost moved 10 to 12 times of the straddle premium. And what it did, कुछ 40 पैसे 50 पैसे के प्रीमियम्स दे वर स्पाइकिंग टू 20 rupees 30 rupees even 60 rupees also it happened. Not exactly 40 paise premium, but 1 or 2 rupees premium they spiked to like 60-70 rupees also. So that's how it went yesterday. And I was unfortunate enough that I got trapped in there and I booked almost 0.8% loss altogether, a small account and main accounts, okay. So in main account, by the way, I booked a loss of 0.7%. In a small account I booked a loss of 1.2%. So that's why altogether 0.8% loss is what I booked. Now this was the summary about yesterday. Now talking about today, okay. So as yesterday I booked a loss, so plan was very clear that either I won't be trading, or if I'm trading then I will be just sitting on a penny trade. I just want a peaceful day, okay. And if you'll see, तो मैंने स्टार्ट ही किया था कुछ 2.5 रुपीज़ प्रीमियम के साथ. उसे ही मैंने बहुत ही जल्दी मैंने उसे डिसड्रॉप कर दिया था. उसके पीछे मैं रीज़न बताता हूँ. जस्ट गिव मी अ मोमेंट. सी, अगर आप यहाँ पे देखोगे, दिस इज फिर निफ्टी स्ट्रैडल चार्ट. सो इट closed yesterday at around 100 and it opened at around 88, then made a low of 84 just in first 2 minutes. उसके बाद ये it kept on spiking till 9:35, okay, and made a high of 93 almost. And this what it does actually that time, so I went in a loss of like 4-5k. वहाँ पे मैं 4-5k के लॉस पे चला गया था. रीजन सिंपल यही था कि IV स्पाइक हुए जा रहा था और प्रीमियम्स बोथ दिस साइड वर इंक्रीजिंग लाइक हेल, बट आई वाज इन अ वेरी फार अवे OTMs, ओके. इसलिए मेरे को ज़्यादा कुछ लॉस एज सच वहाँ पे हुआ नहीं. मेरे को कुछ 3-4k का लॉस हुआ, इसलिए मैं वहाँ से भी और ड्रॉप हो गया, क्योंकि टुडे प्लान वाज वेरी सिंपल, ओके, फॉर मी. मैं सिर्फ आज ग्रीन बंद होना चाह रहा था. दैट वाज द ओनली मोटिव. हाँ, बिफोर टेलिंग यू एनीथिंग, लेट मी टेल यू व्हाट प्रॉफिट एंड लॉस आई मेड टुडे. सो इस मेन अकाउंट में मैंने कुछ 10k प्रॉफिट बुक किया. In another main account I booked 12k profit, and reason for that 2k extra because some problem was there with Alice, okay. So I talked with their team. So what happened, initially not even a single orders were getting punched, okay. So I had to punch it manually initially, then I again उसे मैंने दोबारा फिर कॉपी ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर पे डाल दिया. So that's the reason for this 2k of extra difference. Other than that, it's exact replica of that. So altogether 22k profit in main account, and in a small account I booked 8k profit. सो एक्चुअली इट वॉज 10k, ओके. फिर मैंने स्ट्रैडल को लिया था और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे थोड़ा लॉस बुक किया है, और इस स्ट्रैडल के कारण मेरे को 2.5k का लॉस हुआ. अदरवाइज 10-12k वॉज ईजली विच वॉज विजिबल टू मी. तो मेरे को लग रहा था 12k तो मैं बना लूंगा, बट दैट्स फाइन, दैट्स कंप्लीटली फाइन बिकॉज आई वॉज प्लेइंग कंप्लीटली डिसड्रॉप टुडे इन ऑल 3 अकाउंट्स. मैंने अभी जैसे बताया आपको, आज प्लान बिल्कुल सिंपल था, सिर्फ और सिर्फ ग्रीन क्लोज करना था मेरे को. थर्सडे को आई विल कम, आई विल ट्रेड द वे आई प्ले, ओके, एंड आई विल ट्राई टू कैपिटलाइज ऑन ऑल द अपॉर्चुनिटी दैट विल कम माई वे दैट डे, मीन्स ऑन द कमिंग थर्सडे. So that will be a monthly expiry also, so obviously I will be careful, but at the same time I will try to capitalize that day. So that's altogether a different topic that I will talk in that expiry day only. आज की बात करता हूँ यहाँ पे. तो after the initial spike मार्केट वॉज कम्प्लीटली इन रेंज, ओके. आप देखोगे एक रेंज में मार्केट था, बट हाँ हर बार ये
इट वॉज शोइंग कि यहाँ से ये ऊपर जाकर ब्रेक करेगा एंड माइट बी अ बुलिश डे, बट ईच एंड एवरी टाइम व्हेन इट वॉज टचिंग द हाई ये यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर ले रहा था. बट व्हेन इट हैपेंड सेकंड टाइम हियर आई थॉट ये यहाँ पे ऊपर जाएगा, तो मैंने थोड़ा सा बुलिश पोजीशन स्मॉल अकाउंट में क्रिएट किया था. मेन अकाउंट को मैंने बिल्कुल नहीं छुआ, उस पर मैं रिस्क ड्रॉप प्ले करके सिर्फ 1 और 2 पॉइंट्स कलेक्ट करने के लिए बैठा हुआ था. ओके, जो मैंने थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कलेक्ट किया है वो लास्ट में थोड़ा एग्रेसिव होने के कारण किया, अदरवाइज इट कुड हैव बीन जस्ट 4-5 के डे मैक्स टू मैक्स. ओके, दैट्स हाउ आई वाज ट्रेडिंग देयर इन मेन अकाउंट. सो जो भी अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो स्मॉल अकाउंट के लिए कर रहा हूँ. तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट अप मूव दिखा रहा था, आई थॉट कि यहाँ से अभी ये ऊपर जाने वाला है, तो मैंने यहाँ पे पूरा अपने पोजिशंस को बुलिश बायसेंस की तरफ डाल दिया था. ओके, एंड दैट एक्चुअली गेव मी बिग हिट. और मैं यहाँ पे फ्रॉम 2 के पॉजिटिव आई केम डाउन टू ऑलमोस्ट 10-12 के नेगेटिव. सो दिस इज हाउ इट मूव्ड टुडे. तो एमटीएम काफ़ी बड़ा हिट फिर से वापस लिया मैंने 10-12 के का. फिर यहाँ से मैंने सोचा ओके टुडे माइट नॉट बी अ ट्रेंडिंग डे इधर साइड, तो इसलिए जब ये नीचे आया और मेरे पास ये एक रेंज था, ये पूरा का पूरा मैं यहाँ पे रेंज बना देता हूँ. ओके, ये रेंज क्योंकि ये कल से यहाँ से सपोर्ट लिए जा रहा है, इसलिए जैसे ये यहाँ पे आया और एक ग्रीन कैंडल बना तो उस पर मैंने शॉर्ट नहीं किया था. बट ये जो 2 कैंडल बनने के बाद ये हाई ब्रीच हुआ, तो मैंने अपने पोजीशन को फिर से बुलिश बाय साइड पे डाल दिया था. एंड दैट एक्चुअली गेव मी अ फैंटास्टिक डीके, और उसके कारण मैं 10-12 के नेगेटिव से ऑलमोस्ट ब्रेक इवन आ गया. और फिर बाकी जो 8-12 पे जो मैंने कलेक्ट किया है वो इस फॉल में किया है. ओके, सो दैट्स हाउ आई मैनेज माई पोजिशन टुडे. सो टू समराइज एवरीथिंग, मेन अकाउंट में सिर्फ 1-2 पॉइंट्स कलेक्ट करने के लिए मैं बैठा हुआ था, तो दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन एनीथिंग देयर, क्योंकि वो बहुत फार अवे स्ट्राइक्स थे. ओके, सो दैट डिडंट हिट एनी एसएल, और एट द सेम टाइम इट वाज गोइंग पीसफुल बिकॉज दीज स्मॉल मूव्स वर नॉट हर्टिंग इट एट ऑल लिविंग द फर्स्ट 30 मिनट्स. उसके बाद वो बहुत ही सिंपल था. नाउ टॉकिंग अबाउट स्मॉल अकाउंट, वहाँ पे मैं थोड़ा बीच बीच में कहीं कहीं अग्रेसिव हो रहा था. आई वाज शोइंग माय बायसनेस बिकॉज माय स्ट्राइक्स वर लिटिल क्लोजर टू एटीएम, तो थोड़ा बायसनेस शो कर रहा था. तो इट्स साइड आई गॉट द हिट, यहाँ पे मेरे को हिट मिला, बट इन दिस अप मूव आई कलेक्टेड रियली गुड डीके. और बिकॉज ऑफ दैट यहाँ 12 के का जो लॉस था उसे मैंने यहाँ पूरा कलेक्ट किया और ब्रेक इवन आया, और इस फॉल पे मैंने 8-10 के का प्रॉफिट बुक किया. सो या दैट्स द समरी अबाउट मेन अकाउंट एंड स्मॉल अकाउंट. सो ऑल टुगेदर आई बुक 30 के प्रॉफिट फॉर द डे, एंड या आई जस्ट वांटेड अ green closing, a good green closing happened. So let's see how day goes on Thursday expiry. So yeah, that obviously I will tell in the Thursday expiry video. So I hope everything that I told you just now you learned something from them, and if you do, then please do like and subscribe to my channel. Thanks a lot, and